अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइग्रेशन मेंटोर। माय नेम इज़ हुसनैन अली। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूनाइटेड किंगडम के HMRC डिपार्टमेंट के हवाले से बताऊंगा कि जब आप इस कंट्री में आते हैं या आप यहाँ पे रह रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे बहुत देर से रह रहे हैं लेकिन उनको HMRC के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो सबसे पहले जब भी आप इस कंट्री में जैसे ही लैंड करते हैं, आप अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करते हैं। जब आप अपना वीज़ा फ़ाइल करते हैं अपने कंट्री से, तो आप दो फीसेस पे करते हैं, एक नेशनल इंश्योरेंस पे करते हैं और दूसरा अम्बेसी फ़ीस। तो वो जो नेशनल इंश्योरेंस आप पे करते हैं वो इसी नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए होती है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो अपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई करते हैं। अब नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई किस तरीके के साथ किया जाता है, मैं भी आपको वो बताता हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल क्या है, क्यों हम ये नेशनल इंश्योरेंस नंबर लेते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं नेशनल इंश्योरेंस नंबर की तरफ के अप्लाई किस तरीके से करते हैं। देन मैं वापस आके आपको इसका एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। सिंपल, ओपन योर गूगल पेज एंड राइट अप्लाई फॉर NI। क्लिक ऑन इट, स्क्रॉल डाउन, अप्लाई। Have you applied for national insurance number for yourself before? No. First time. Are you working or looking for a work? Yes, I am looking for a work. Click on it, continue. What is your full name? Write your first name, surname. Click on it. Have you had different name before? No, I have no different name. If you have, yes, and put in which of the following best describe male or female. What is your nationality? Put your country name. Write your date of birth with day, month, and year. Continue. Were you born in the UK? If yes, then yes, no. When did you first move to UK? When you arrived on UK, put your date, month, and year. What is your address? Put your postcode according to your residence address. Select your house number. Continue. Can we send letter on your house? Yes, you can. How did you need to send us your letter? Yes, you can send the printed letter. Can we send email confirmation? Yes, put your email address. Continue. If we have question about your application, can we phone you? Yes, you can. Put your mobile number. Make sure that one is active. Do you have a passport? Yes, I have. Put your passport number. Do you have a biometric residence permit? Yes, I have. Put your BRP card number. That will shown on the right corner. Prepare to take upload photos. Yes, we are ready. The first photo is your passport. If the photo is already in your mobile, scanned photo, then choose the file and upload it. Upload the photo. Okay. Does your photo meet the requirements? Yes. Click on yes and then continue. The next photo, open your passport first page with your face with white background. Just hold your passport with your face and tell to somebody else who take your picture. Then upload it. Does your photo meet the requirements? Yes, my face and my passport are both clearly visible. Click on it and continue. Take upload the photo of your BRP. If you already have in your mobile, just choose the file and upload it. Continue to upload. Does your photo meet these requirements? Yes. Continue. And make sure check all the details that you put in your application will be correct. Click on it.
I have read and understood the information, all spellings and every date, accept and send, application submitted, and you will get your application reference 8 digits number that you can use before you receive your नेशनल इंश्योरेंस लेटर। जी, तो ये था तरीकाकार नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करने का। जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है। इस रेफरेंस नंबर को आप 1 महीने तक यूज़ करेंगे। 1 महीने के बाद आपको जब नेशनल इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट आपके डोर स्टेप पे रिसीव हो जाएगा और आपको ईमेल भी आ जाएगी, वो आपके पास जो है एक नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपका 8 डिजिट्स का नंबर होगा। ये नंबर आपके तमाम किस्म की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करता है इस कंट्री के अंदर कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। अगर आपने कहीं पे सैलरी लेनी है तो सबसे पहले वो आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर मांगेगा, वो ये पुट करेगा और इसके थ्रू जो है वो आपको आपकी सैलरी पे करेगा। अब आपने कितनी सैलरी ली, कितना कमाया, और स्टूडेंट लाइफ में जब आप यहाँ पे आते हैं तो 12,570 पाउंड्स आपकी एक अमाउंट होती है जो कि फ्री ऑफ टैक्स होती है। और जितने भी शहरी यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो बाहर से हैं या यहाँ पे रहते हैं, अगर वो पार्ट टाइम काम करते हैं तो पार्ट टाइम में कॉन्ट्रैक्ट में उनकी जो फर्स्ट 12,570 पाउंड्स की अमाउंट है वो फ्री ऑफ टैक्स होती है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। इसके बाद जो है वो एक टैक्स स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आगे कि आपने ये चीज़ें चेक किस तरीके से करनी है। HMRC आप अपनी ऐप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके उसके ऊपर आप अपना अकाउंट जनरेट करेंगे। अकाउंट जनरेट करने के बाद नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपके पास ऑलरेडी है। अकाउंट जनरेट बहुत जल्दी हो जाता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। गूगल पे आप जाके सिंपल HMRC अकाउंट लिखेंगे और अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। आपके सामने क्रिएट एन अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आएगी, आप पुट करेंगे, आपको सामने जो है ना वो चीज़ें आ जाएंगी। HMRC की ऐप भी है जो कि आप वो भी डाउनलोड कर लेंगे। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आगे आपको खुद बताएगा कि आप ऐप डाउनलोड कर लें। मोबाइल आपके पास चाहे एंड्रॉयड है या आईफोन है, दोनों के लिए जो है डिफरेंट ऐप्स हैं। वो जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके ऊपर जो है इनका टैक्स ईयर जो है वो 5 अप्रैल से 6 अप्रैल तक जो है ना वो स्टार्ट और एंड होता है। जैसे 5 अप्रैल 2023 टू 6 अप्रैल 2024। तो इसके दरमियान जितनी भी आपने सैलरी रिसीव की हैं, जितने एम्प्लॉयर से कितना आपने टैक्स पे किया है, अगर आपका टैक्स ज़्यादा चला गया है या कम चला गया है या उसमें किसी किस्म की प्लस एंड माइनस है, तो नीचे क्लेम की ऑप्शन मौजूद होती है। आप टैक्स क्लेम भी कर देते हैं। अगर आप क्लेम ना भी करें तो नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद आपका जो है वो टैक्स आपके पास वापस आ जाता है। एक चेक जो है वो आपके डोर स्टेप पे आता है, उस एड्रेस पे आता है जो आपने एड्रेस वहाँ पे पुट किया होता है। तो मेक श्योर करना आप जितनी दफ़ा भी एड्रेस अपना चेंज करें, आपने अपना HMRC के ऊपर अपना एड्रेस लाजमी चेंज करना है। हर ऐप के ऊपर चेंज करना। यहाँ पे आप बैंक अकाउंट्स भी हैं आपके जितने भी, उनके ऊपर भी आप जाके चेंज करें, क्योंकि वो जितने भी लेटर्स आते हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो मेक श्योर करना है कि आपके राइट एड्रेस के ऊपर आए। तो ये है एक HMRC का फ़ायदा, और ये है इसलिए हम इसका अकाउंट बनाते हैं और ये नंबर लेके ये हर जगह पे हम देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने कितना टैक्स पे किया है, कितना रहता है, हमारी क्या एक्टिविटीज़ हैं। जब आपको 1 साल गुजर जाता है यहाँ पे, या चाहे 1 महीना भी गुजरता है, तो आप एक नई जॉब की तरफ जाते हैं तो वो आपसे आपकी HMRC हिस्ट्री मांगते हैं। HMRC के अकाउंट पे जाएं और उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे HMRC की हिस्ट्री होती है, जितनी भी आपने पीछे गुजार ली है, तो हिस्ट्री डाउनलोड करके आप उनको भेजते हैं। तो ये एक यहाँ की पहचान है। यहाँ पे आप एक टैक्स सिस्टम के अंदर ऐड होते हैं और यहाँ पे आपकी एक पहचान जो फाइनेंशियली बनती है वो HMRC के थ्रू बनती है। तो मेक श्योर करें इसका लाजमी आपने अकाउंट जो है आपने अपने पास क्रिएट करना है और ऐप डाउनलोड करके रखनी है। और जब भी सैलरी रिसीव होती है, एक दिन पहले जब आपकी सैलरी स्लिप जनरेट करते हैं, आपके HMRC के ऊपर वो सैलरी अपलोड हो जाती है 24 आवर्स बिफोर। बाद में एम्प्लॉयर ने आपको कब सैलरी पे करनी है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर वो पे नहीं करता तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप वहाँ पे जो है कंप्लेन कर सकते हैं HMRC के ऊपर ही। 48 आवर्स के अंदर इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि एम्प्लॉयर्स यहाँ पे कोई पागल नहीं है जो सैलरी स्लिप बना के आपको पे नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता, ना मैंने कभी सुना है। तो वो आपको लाजमन पे करेगा। तो ये था HMRC। अब इसके ऊपर एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि HMRC को लीगली लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं और इलीगली इसको कैसे यूज़ किया जाता है। इलीगली यूज़ करना एक क्राइम है और उसके अंदर क्या क्या पनिशमेंट्स हैं वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, एक स्टूडेंट के लिए भी और एक सेल्फ एम्प्लॉय के लिए भी। और उसके वाले से मैं आपको इम्प्लीकेशंस कुछ बताऊंगा कि आपने उन चीज़ों को कैसे फॉलो करना है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।